प्रभुता नहीं करेगा। So this is a new covenant promise is we are under the grace because of under the fall of a life stream, the love of God, the sin shall not overprevail. ये नया नियम के नया वाचा है, हम नए नियम के अधीन हैं, हम उनके अनुग्रह के अधीन रहने की वजह से पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। Please understand my word. We are under the Nirvilchi life stream. Definitely our whole body will be the water, right? आमेन। हम एक झरने के नीचे हैं, हमारे शरीर पूरा मतलब गीला हो जाएगा, पानी के अधीन आ जाएगा। So many people not understand the word of God. Why? Because they are not at all reading well. और बाइबल को इसलिए लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो सही तरीके से पढ़ते भी नहीं है। So I have a 17 type of translation in my home. I'm using normally 7 or 8 translation. All the translations saying one thing, but I was understand totally different in my mind. और 16-17 एक हमारे अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद बाइबल मेरे अनुवाद किया गया बाइबल मेरे पास है। मैं 7-8 तो यूज ही करता हूँ, पर एक चीज को मैंने देखा, सारे एक ही कहता है, अनुग्रह के अधीन हम हैं। Read very carefully. This is 6:14 says, sin shall not master over you, right? ये आप 6 का 14 आप ध्यान से पढ़िएगा। पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। Why? Because we are not under the law. We are under the grace. Because of the grace on me, sin shall not master over me. आमीन। हम इसी तरह पढ़ते हैं, अनुग्रह के अधीन रहने की वजह से हम पाप हम पर राज नहीं कर पाएगा। Until I was not at all getting the revelation from this word, I was thinking I must overcome sin. और इस वचन को पढ़ने तक, इसकी प्रकाशन मुझे मिलने तक मैं ये सोच रहा था, पाप को मैं जीतूं। Please understand the difference between you kill the sin, sin cannot master over you. See the difference, right? आप दोनों चीजों को देखिएगा, पाप को आप हराना या पाप आप पर प्रभुता ना कर पाना। This is exactly like this. I kill the snake. One part. ये ऐसा लगता है, मैं सांप को मैंने मारा। Sharpan. Sharpan. सांप बोलते, स्नेक। Okay. Maybe this is not talking about I kill the snake. और ये इसी तरह बात नहीं करता, सांप को मैंने मारा, सांप को मैंने नहीं मारा। Maybe you may think amazingly seeing this word. This word is not talking about killing the snake, right? और ये नहीं कहता है कि सांप को मारने की बात नहीं करता ये वचन। This word says the snake will bite, that poison will not go inside. That is the meaning of this word, right? और ये करीब करीब ऐसे मतलब देता है, सांप काटेगा पर जहर आपके अंदर जाएगा ही नहीं है। Why? Because you are under the grace. क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन में हैं। So this much we have a misunderstanding the word. We are trying the level best to kill the snake, right? और हम इसी तरह गलतफहमी में थे क्या, और हम सांप को मारने में लगे हुए थे। See, you understand, when we born of God, there is a seed is inside. There is a power is inside already. Because of that, sin not having domain over you, right? और हम प्रभु यीशु मसीह में जन्म लेने की वजह से वो बीज जो हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, उसी की वजह से पाप जो है हम पर राज नहीं कर पाएगा। 430 watts of electrical wire is there. If we are using the proper cover gloves, when we touch it, it will not at all kill you. Understand? ये 4,000 के ऊपर जो वोल्टेज वाला तार है, अगर हम सही बड़े ग्लव्स पहन रखे तो ये बिजली हमें छू नहीं पाएगा। Even the transformer, switch on, switch off by that electrical government people, no, they are using the wonderful gloves and switch on, switch off the much power that transmitter, right? The transform. और ये ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव में लगाया जाता है, वो उसको बंद करने वाला, खोलने वाला, चलाने वाला, बंद करने वाला, इतनी बड़े ग्लव्स लगाने की वजह से उतनी पावर वाला जो बिजली उनको छू नहीं पाता। So many snake catchers, no,
in our area, so many snake catchers in Kerala. Even they find it very big king cobra also. और हमारे एरिया में बहुत सारे सांप है, सांप को बहुत सारे लोग पकड़ते हैं। इवन जो सबसे बड़ा कोबरा बोलते हैं, जो नाक काला नाक है, उसको भी लोग ने पकड़ के लाया। See, they have some medicine is inside. When the snake bite also, they will not have any poison in their life. उसके अंदर, हमारे अंदर अगर दवाई मान लीजिए, वो सांप काटेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। Maybe it is new to you today. We are talking about और the ये second step. हम दूसरे कदम पढ़ रहे हैं, ये वो आपको शायद नया हो सकता है। Okay, if you don't believe me, please read slowly what is 6:14 says. Please read very, very slowly. और आप धीरे धीरे इसको 6:16 को पढ़िएगा। See, when we under the grace, not we are in the under the law. When we under the grace means, that means sin cannot master over you, right? और हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन होने की वजह से पाप हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। So if you don't understand, I want to read it in my Message Bible, the same word. मैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं मैसेज बाइबल करके एक अनुवाद है, बाइबल अनुवाद किया गया बाइबल है, What उससे पढ़ता हूँ। exactly in Hindi, brother? What exactly in Hindi, brother? The same thing? जी Hindi, same thing, brother? हाँ जी, हिंदी में तो सेम है। Yes, same, same thing, huh? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Yeah, here see ये नई भी वर्षन ट्रांसलेशन है, ये जो हिंदी बाइबल है। Hindi Bible get translation. Okay, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। same every place, brother. Same word. It जी is not talking about the overcoming sin. The sin cannot master over us. Difference हम between पाप को जीतना नहीं, पाप हम पर प्रभुत्व कर ही नहीं पाएगा। see here, first I read it in Living Bible first. और मैं एक लिविंग बाइबल से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। Don't be misunderstand me. I am using this. I understand the real truth. That is the reason I want you to be realization, come to the real meaning of this word. That is the reason I am reading all the things. और मैं अलग अलग अनुवाद से पढ़ रहा हूँ, मुझे बुरा मत मानिएगा। और इसको पढ़ने से आपको सही जो समझ और प्रकाशन आपके पास पहुंचेगा। We are going to read two translation. One is Living Bible, another one is Message Bible. मैं दो बाइबल से पढ़ूंगा, एक लिविंग बाइबल से, एक मैसेज बाइबल से। Okay, please. First I read it in Living Bible. Sin need never again your master. और पाप जो है कभी भी आपके ऊपर स्वामी नहीं बन पाएगा। Understand? Right translation. Sin is not your Swami, right? हाँ जी, और ये सही अनुवाद है, पाप जो है आपके स्वामी नहीं है। See, I tell you the story. The person first time touched the liquor. Ha! He hate it, right? Liquor, drink. Liquor, alcohol. और शराबी को हम मतलब नफरत करते हैं ना, पसंद नहीं करते हैं। Then second time, because of the taste, he take it next day again. Okay, जो first statement, can you repeat it? Yeah, first day he just take one bit. He hated the smell and the taste. Okay. Definitely hate it. Confirm, brother. He hate it. जी, तो मतलब शराब को जब हम पहले बार थोड़ी सी पीते हैं, उसके बदबू, उसकी टेस्ट पसंद नहीं आती है। It is going inside. It takes some pleasure. So he third day, fourth day. After that, it is became a habit. और थोड़ा थोड़ा अंदर जाते जाते उसका नशा चढ़ते चढ़ते हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाते हैं। एक अलग तरह के आनंद देता है, शारीरिक आनंद देता है। Lust lead to work. Continue work lead to habit. और लस्ट जो है, जो अभिलाषाएं जो है, धीरे धीरे काम करता है और उसको हमें अधीन बना देता है, राज करने लग जाता है। This is psychology of sin. I am telling, this is a psychology of any sin. ये मनोविज्ञान है पाप का। See that finally he became slave. That now the 1 month now is a slave now. और एक महीने के बाद वो बंदा वो जो है गुलाम हो जाता है उस पाप का। Evening 6 o'clock, his hand is shaking. और 6 बज गया तो हाथ हिलने लग जाता है। See, who is the master now? अभी स्वामी कौन है? 90 bottle, right? Master now, right? 90 जो बोतल है वो है, In स्वामी बन गया। In Tamil Nadu, Das Mark is the master now.
और हम तमिलनाडु में टास्माक एक जो शराब के ठेके को बोलते हैं वो स्वामी बन गया। See, when he lay down, he wake up, he think, who is the master now? 90 cutting और is the हम master now. उसके बात करते हैं, उसके बाद सोचते रहते हैं अभी स्वामी कौन है, बोलिएगा। Why? Because he started and he committed. Finally, he became slave. और पहले शुरू किया, फिर उसके रोज उसको करने लग गया, फिर उसके बाद वो स्वामी बन गया। Any sin, any sin, any sin, I tell you, any sin. कोई भी पाप हो, कोई भी पाप हो। But when we under the grace means, we understand that God's love means the sin not master, right? It's not lead me, हम right? और अनुग्रह के अधीन मतलब हम पूरा समझते तो ये मतलब है वो मेरे स्वामी नहीं बन पाएगा। Sin need never again be your master. और पाप कभी भी आपके स्वामी नहीं बन पाएगा। I like the translation, Swami brother, where sin enclaves you. We are not tied up with that loss. The loss give the impression, the sin. We are not tied up with that. Now we are under the grace. हम लोग उस पापों के द्वारा बांधा नहीं जाएंगे, गुलाम नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि हम अभी अधीन अनुग्रह के अधीन हैं। And understand the Living Bible translation. It is telling, but you are free under God's favor and mercy. और हम लोग परमेश्वर की जो इनाम में मिली हुई है दया और उनके अनुग्रह के अधीन हैं हम लोग। Two things is written in Living Bible: और favor यहाँ and mercy. और यहाँ पे जो पक्षपात में हमारे लिए कुछ करते हैं ना, उसको हम अनुग्रह करके बोलते हैं, वो और उनकी दया। கிருபை இரக்கம். और दया और उनकी और जो हम पर बहुत तरस खाते हैं ना, वो बोलते हैं तरस खाना। See, I understand my past sins because of the mercy of God. God ready to forgive me. I understand this mercy and I understand the grace, and coming days He is able to help me to live a godly life. Sin मैं doesn't have any more power. ये समझ पाता हूँ कि भूतकाल में जो हमारी पाप हुई उसके लिए उनकी दया काफी रहा, और आने वाले टाइम में मेरे पापों पर जय पाने के लिए मेरे अनुग्रह काफी रहा। In one word I'm telling, if I understand God's love, the sin doesn't have any power on me. That is the meaning of 6:14. और ये 6:14 का मतलब 6:14 के मतलब ये है कि परमेश्वर की प्यार को अगर हमने समझ लिया, पाप कभी भी मेरे ऊपर स्वामी नहीं बन पाएगा। Now again read that message, Living Bible. No, sin no need never be again your master. और मैं मैसेज बाइबल से पढ़ता हूँ, ये पाप जो है कभी भी मेरे स्वामी नहीं बन पाएगा। Living Bible. Sin never have a master over it. Why? Because you understand the mercy and grace, right? और हम लोग ये लिविंग बाइबल से पढ़ रहा हूँ, हम जो प्रभु की दया और उनकी तरस को समझ लिया, इसलिए कभी भी उनकी जो पाप का जो स्वामित्व है हम पर नहीं होएगा। Here there is no work, brother. Only the faith. Understand His love. Nothing else. यहाँ पे किसी भी तरह की क्रिया की जरूरत नहीं है, हम खाली ये समझे उनके प्यार को। Hey, I am reading that message Bible now. 6:14. अब मैसेज बाइबल से दोबारा पढ़ रहा हूँ। 6:14. 6:14 6:14 says like this: sin cannot tell you how to live. और ये पाप आप ये नहीं आज्ञा नहीं देगा या कह नहीं पाएगा आप कैसे जीना है। Again I tell you, under the grace, the sin cannot tell how I live, right? और ये मैं अनुग्रह के अधीन में हूँ, इसलिए पाप ये नहीं बोलेगा तू कैसे जीना है। Again the same illustration. Evening 6 o'clock, evening 6 o'clock, I understand the mercies of God and grace of God. I understand God love me so much. Then 90 cutting will not lead me how to live, right? और मैं 6 बजे की जो शराब की आज्ञा जो है मुझे कैसे जीना है करके, वो मुझे आज्ञा मतलब ऑर्डर नहीं दे सकता है कैसे जीना है करके। After all, you are not living under that old tranny any longer.
you are living in the freedom of God in Message Bible. और आप जो पुराने व्यवस्था कानून इनके अधीन ना रहने की वजह से आप ये अनुग्रह के अधीन रहने की वजह से है। Freedom of God, wonderful translation of और Message Bible. ये ना परमेश्वर की आजादी। Okay, come to the real life. You will understand what is the meaning of that. और आइए हम सच्चे जीवन में जाएं, कैसे हम समझ पाए। See, God's plan in the new covenant, God want to take this all people and love these people became his own son and daughters. Right? और ये नए नियम के अनुग्रह के अधीन रहने वालों प्रभु अपने अधीन में लेकर इनको अपने आप चलाना चाहते हैं। Now in the new covenant, John Gospel 1:12 says, whoever believe in God, they believe in Jesus, whoever accepted Jesus, they all have a authority. They all have became a child of God, right? नया नियम में जो लोग जी रहे हैं उनको परमेश्वर ये आशीष दिया है, जो कोई उन पर विश्वास करता है उनको संतान होने का अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। That is the reason last section we see now born of God, right? Born of God, seed of God, right? इसलिए हमने पहले सेशन में हमने पढ़ा था और उनके मतलब बीज है, हम उनके द्वारा जन्मे, उनकी बीज हमारे अंदर है। We are talking about under the grace. What is the meaning of under the grace? Under the new covenant, right? हम बात कर रहे हैं अनुग्रह के अधीनता। Under the grace means God now is my father, right? अनुग्रह के अधीन मतलब ये होता है परमेश्वर मेरे पिता है। Again I tell you, the whole universe created by God, the same God is my father now. How the sin will overcome, right? और इस ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु हमारे पिता हैं, तो ये पाप मुझ पर कैसे राज कर पाएगा? Maybe you people think like this is a magic. I'm telling the truth today. This is a word of God. It's a new way. God already opened the new way. और आप ये तो जादू टोने की, ये जादू की बात कर रहे हो। नहीं, मैं ये नया नियमों की वाचा को वायदा की बात कर रहा हूँ। I tell you that there was a boy not having any father and mother. He's on the road and he fell down so many sins. Considered he doesn't have a money. He's taking a begging on the road. You considered a person like this. एक लड़का को अभी आप ऐसे सोच के देखिएगा कि जिसका कोई माता पिता नहीं है, सड़क में भीख मांगता है, फटे हुए कपड़े हैं और कई तरह की गलत आदतों में पड़ा हुआ लड़का है। See, this is the condition of a boy, small boy. But because of his hungry, he steal, he do wrong things, he tell lies, all the things. Why? Because he doesn't have anybody to support, right? और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, इसी वजह से वो चोरी करता है, भूख की वजह से कभी मांग लेता है, सारे गलत काम करने वाला लड़का है। Some very rich person came one day morning and एक धनी व्यक्ति एक दिन आया, standing in front of the person, that boy, hey boy, I want to take you as an adopted child. You are the only person having all my wealth. Written the paper and given to him on the spot. और वो धनी व्यक्ति एकदम इनके सामने आके खड़े होकर, मेरे बेटा, तुम्हें मैं अपने बेटा बनाना चाहता हूँ, इधर आओ, मेरे सारे जो धन दौलत की अधिकारी तुम बनेगा। Number one, now he under the grace now, right? Now he is under the grace of rich person. और अभी उस धनी व्यक्ति के अनुग्रह के अधीन है ये लड़का। Now he is a son of that very rich man, right? वो उस धनी व्यक्ति का बेटा है ये ना। He will not begging, right? अभी वो भीख नहीं मांगेगा। He will not lead by the old ways, right? और वो पुराने तरीके से नहीं जाएगा। Understand the Living Translation? Sin will not have a domain over you, not lead you, not master you. आप नए लिविंग ट्रांसलेशन के लिए आप समझ रहे हैं ना, और वो पाप आपको लीड नहीं, मतलब चलाएगा नहीं है, आपके ऊपर वो राज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना आप? So many people beating, even the dog biting. Nobody's respecting him. And the next day, he come on the Audi A6 and then tip-top jeans and t-shirt, get on from the Audi 6 on the same road. Nobody is able to touch the person. Why? Because now he is a son of a very rich person in the same city, right?
और गली में घूमने वाला लड़का था और कुत्ते काटने के लिए आते थे, लोग उसके ऊपर चिल्लाते थे। और ऐसे व्यक्ति आज अचानक और एक BMW कार में आ रहा है और टी-शर्ट नए जींस से उतर रहा है और कोई पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि उस धनी व्यक्ति का बेटा बनने की वजह से। Somebody's put the hot water in the face because he is a poor person. Now the same Tikadai master is standing there. He says, "Sir, morning, sir. See, huh? See." जी, एकदम वो भीख मांगता था, वो चाय की दुकान वाले उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने वाला था। आज वो उतर के उसको मतलब कोट सूट में आने की वजह से वो जी आपको क्या चाहिए करके पूछ रहा, वही चाय की दुकान वाला। That is the reason Jesus told all the people, "You have a heavenly Father." Many और times Jesus explained all the things. और ये इसलिए यीशु बार-बार इसको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तुम आसमानी पिता के संतान हैं। When we understand we have a heavenly Father, take care of everything in our life, the sin cannot, I tell you, brother, this is the truth. Jesus opened a new way. The sin cannot, any domination in your life, sin cannot lead you, I tell you. और ये जो पिता के अधीन रहने की वजह से आप उसको समझिएगा, कभी भी पाप आप पर राज नहीं कर पाएगा। For example, you have a lusting any woman, you consider that lady is a father of your father. Huh? Have you lust on that same lady? I tell you, brother. I tell you the अगर truth. आप एक स्त्री को आप गलत दृष्टि से देख रहे हो, वो आपके पिता के समान उम्र की हैं, क्या आप उस स्त्री को गलत नजर से देख पाएंगे? See, if you are lusting a woman, she is the sister of you. She is the daughter of your father, right? Please understand this truth. और क्या आप एक आपके पिता के संतान जो आपके सगे बहन हैं, उसको क्या आप गलत दृष्टि से देख पाएंगे? There is a father, his name is love, loving so much. How are you falling on this type of things in your life? और एक पिता है आपसे बहुत प्यार करने वाले, वो उस धनी है, उसके बेटे होकर आप किस तरह के इसी तरह काम कर सकते हैं? Nobody's understand. So many people are thinking like this. We may do something, then only we'll get the grace. I tell you, we already under the grace, under the love, under the mercy, under the grace of God. We became a child of God now. Sin will और not having any domain over us. I tell you. और हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कुछ करने से हम प्रभु के अनुग्रह पाएंगे, नहीं, हम लोग पहले से, मैं सच कह रहा हूँ, पहले से हम उनके अनुग्रह के अधीन हैं। आप उनके बेटा हैं, आप उनके संतान हैं। See, Romans chapter 5:8. We know very well this word. Romans chapter 5:8, right? जी, हम लोग रोमियो की 5 का 8 हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना। When we are sinners, हम लोग जब पापी ही थे, He gave His own Son and He put into so much of bad thing. That means, or Maritadnale, God saw how He loved us. और वो अपने बेटे को उसकी मतलब हाथ में छोड़ा, जो क्रूस पर जो हमारे पापों के लिए वो मरे। So we understand the love of God. We understand the love of Jesus. That will change our mindset towards the sin. I tell you. और हम पिता के प्यार को, यीशु मसीह के प्यार को अगर समझेंगे, तो पाप के ऊपर जो हमारा दृष्टि है, वो दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। There is a department store. Every day some materials are missing. और एक करियाना की दुकान थी, उसमें हर दिन एक सामान गुम होते जा रहा था। The owner is so much amazingly see that then he put the CCTV camera. He found और वो उसके मालिक जो हैरान हो गया, और ये कैसे हो रहा करके पता नहीं चल रहा करके उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। then he found out there was a girl every day 6 o'clock. He was taking some material. Always every day 6 o'clock. और 6 बजे एक लड़की आती थी, वो आराम से अपने एक सामान करके निकाल के ले जा रही थी। So watching 1 week, 10 days, 1 month. और वो 10 दिन, हफ्ते और महीने तक देखते जा रहे थे। Every week, every day after 6 o'clock. और 6 बजे के बाद हर दिन। The girl went inside and put something inside and go to the home. और वो आराम से आती है, कुछ सामान उठा के अपने कपड़े के अंदर छुपाती, चली जाती। One day morning 9 o'clock the shop was open. और एक दिन 9 बजे दुकान खुल गया।
there is one advocate and one police inspector and one officer came to this same departmental store. और वो एक जो हरियाणा की दुकान में एक एडवोकेट, एक पुलिस वाले, वो 3 ना, पुलिस एंड One एडवोकेट। advocate, one officer, for registration officer. ओके, एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो भी आए हुए थे, एक जो रजिस्ट्री करने वाले एक ऑफिसर थे वो भी आए हुए थे। Everybody watching there. Then that owner of that departmental store called that girl. Bring that girl. और वो जो मालिक है, दुकान के मालिक है, वो जो चोरी करती थी उस लड़की को बुलवाया। Then the policeman used that girl's name. Hey, come. वो जो पुलिस वाले ने वो लड़की को बुलाया, इधर आओ करके। The same lady is taking the material, no, stealing the material. जो चोरी करती थी उस लड़की को बुलाया उन्होंने। And she was thinking like this: today we caught, definitely we will lose the job, we will go to the jail. और वो जो लड़की अपने काम को खो जाऊंगा और आज तो मैं पुलिस के हाथ में पकड़ा जाऊंगा करके सोच रही थी। Then she is ready to face the situation. और वो अपने मन को पक्का कर ली जो समस्या है उसको सामना करने के लिए। Then the owner of the departmental store, one document, patram, put it in the patram inside the table. और वो जो कागजात जो है, तो दुकान के कागजात जो है वो टेबल में रखा गया। One document. हाँ जी, कागजात जो है वो टेबल के ऊपर रखा गया, मेज के ऊपर। Then the owner talked to that young girl. और वो जो जवान लड़की से मालिक ने बोला, My dear daughter, और मेरे प्रिय बेटी, I was watching you 1 month after 6 o'clock. You steal so many materials here. और कई चीजों को बेटी तुम 6 बजे के बाद आती हो और चोरी करके जाते हो, मैंने देखते रहा महीने तक। Because of that, I want to give the punishment. और मैं इसलिए एक सजा देना चाहता हूँ आपको। Please sign this paper. और आप इस कागजात के ऊपर साइन कर लो अपना। Policeman says, go and sign the आपने क्या paper. लिखा? और वो मालिक बोल रहा तुम जाकर उसमें साइन करो। Then advocate says, go and sign this paper. और एडवोकेट एकदम कह रहा जाके साइन करो। The officer also says, I am ready to seal it. Please sign this paper. और जो ऑफिसर है वो अपने मुहर लगा दिया, तुम जाके उसमें साइन करो करके वो भी कह रहे थे। Everybody watching there. और सब लोग देख रहे हैं इस बातों को। She came near to the table and read this paper, that document. और वो जो लड़की वो आके उस कागजात को पढ़ने लगी। It is written like this. I want to इसी तरह take लिखा you हुआ adopted child. My whole material, the store, everything's belonging to you. I don't have any daughter and son. You are my inheritor of all my wealth. Please agree me as your father. It is written on the paper. और मुझे कोई बेटा बेटी नहीं है, मुझे साथ देने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं आज आपको बेटी करके गोद ले रहा हूँ। ये सारे जो दुकान की सब कुछ है आपके हो जाएगा आज के बाद। इसी तरह लिखा हुआ था। When she was reading that paper, body is shaking, hand is shaking, eyes is coming down like anything. This is a punishment anybody is given? Huh? This type of punishment? और वो लड़की पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, सर हिलने लगी और आंसू आने लगे। इसी तरह कोई आज तक कोई किसी को सजा दिया क्या? He fell down that owner's leg. Sir, I never ever expected this, lad. I'm not at all worthy, sir. I'm a thief. और वो लड़की बोलने लगी एकदम उसके जो उस दुकानदार के पैरों पर गिर के, सर हम इसकी योग्य नहीं है, मैंने कभी सोचा तक नहीं है, ऐसे करके रोने लगी। See, he is telling me, don't call me sir. और वो आदमी बोलने लगा, सार करके मत बुलाना। I am your father. मैं आपके पिता हूँ करके वो आदमी You कहने are लगा। my daughter. Wake up. आप मेरे बेटी हो। Please consider the situation. Romans 5:8. Huh? और आप इस संदर्भ को देखिएगा जो रोमियो के 5:8 का संदर्भ ये है। When we are sinners, पापी थे, we became a child of God. Huh? See, और एक तमाम उनके बेटा और बेटी बन गए। He forgive everything. Take that girl, the daughter, right? और चोर से वो अपनी बेटी बना दिया एकदम। Consider my illustration. I don't know the way to explain. Next day, 6 o'clock,
The bell is ringing. Understand my illustration and remember next day 6 o'clock. और अगला दिन 6 बजे घंटी बज रहा था, ये संदर्भ को आप समझिएगा। Same girl, right? और वो सेम लड़की जो है 6 times the watch is ding, 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 6 o'clock, right? 6 times. और वो जो 6 बजे वो 6 बार अपने जो वॉच का घंटी बजती थी, उसको वो चोरी की याद आती थी। No need CCTV, right? अभी सीसीटीवी की जरूरत नहीं है। She understand who she is now, right? वो समझती थी पूरा कि मैं कौन हूं करके वो लड़की। I am a daughter of this owner, right? और अभी मैं इस मालिक का बेटी हूं करके समझ ली। Second thing, it's all mind, right? It's all और mind, right? ये सारे हमारे दिमाग की सोच हैं। Yeah, everything is mind, right? ये सब कुछ हमारे दिमाग की सोच है। She will not steal, right? Confirm, right? She will not steal, right? और अभी पक्का है, पक्के तौर पे वो चोरी नहीं करेगी, है ना। Romans 6:14. Understand? Understand the और Romans अभी 6:14? अभी रोमियो 6:14 का आप समझ पा The रहे हैं ना। sin shall not lead you, right now. और वो पाप जो है, पाप करने के लिए आपको अगुवाई नहीं कर पाएगा। Sin never need to master on you now, right? Understand? और कहीं ऐसे जरूरत ही नहीं है कि पाप आप पर राज करें। What is the change? Tell him, brother. और क्या यहाँ पे बदलाव आया, आप सब बोलिएगा। Became a daughter, right? Became a daughter now. Became और a अभी हम daughter of बेटी very good. बेटी बेटी हाँ. बेटी बन गए हम उनकी। John Gospel 1:12 says, no, we all became a child of God, right? और आप यूहन्ना 1:12 पढ़ के देखिए, हम लोग उनकी संतान हो गए। We ever thought what is the authority God gave to us in our life? We never thought like this, right? और आप कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि प्रभु क्या हमें अधिकार दिया है करके। This is the adhikar. The sin will not have any domain over us. और यही हमारे अधिकार कि पाप कभी हम पर राज्य नहीं कर पाएगा। How much we understand the God's love as a father, how much we understand Jesus died for us, gave his whole life, then the power of sin in our life, day by day, year by year, it's go down. I tell you, brother, और it's my life. और पिता के प्यार को अगर हम समझते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा करके हम उन बातों को पूरा समझ पाते हैं, दिन प्रतिदिन ये पाप की जो राज जो है, जो अधिक प्रभुता जो है, धीरे 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 खत्म होते जाएगा। Read the word of a Paul. He is the person really understand Jesus well now. He says like और this, Romans chapter 8, verse 38. Yeah, sorry, 37. और पौलुस की बातों को आप समझिए, वो पूरा यीशु मसीह को समझता था, इसलिए उनके शब्दों को थोड़ा पढ़ें। रोमियो के 8। He listed out so many things in his life. Finally, he come to the solution. और रोमन्स 8 Romans chapter 8, verse 37. 37। ओके, Yeah. ये रोमियो के 8 का 37 जो है, पौलुस की शब्दों के द्वारा हम समझ पाते हैं। आप पढ़िएगा। These all things is written. இவை எல்லாவற்றிலேயும் और ये सभी बातों में, इन सभी बातों में நாம் நம்மில் अன்பு கூறுகிறவராலே முற்றிலும் ஜெயம் பெறுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Hallelujah. और जो हमें प्यार करता है, उनके द्वारा हम जयवंत बनते हैं। हालेलुया। I don't know how we explain it. I tell you, brother, if you understand the love of God as a father and son is your brother dying for you, the sin never have so much of power in our life. I tell you the truth. आमीन आमीन। ये जो भाई ये सही समझा रहा, मुझे मालूम नहीं है, बट ये एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, वो पिता है करके, आप उनके बेटे हैं करके, क्रूस पर जो यीशु हमें दिखाए, उन बातों को अगर समझ पाते हो, कभी भी पाप आप पर मुझ पर राज कर ही नहीं सकता। Covenant way of not overcoming sin first. The sin doesn't have a power over you because you are the child of God, right? और हम नया नियम के पाते में पाप पर आप विजय पाना नहीं, पाप कभी भी आप पर प्रभुत्व नहीं करेगा, क्योंकि आप नया बच्चा की संतान है। Why? Because the love of God, we understand the love of God thoroughly.
our hands will not move next, right? Huh? Right? ओके, हम जरूर अगर हम परमेश्वर के प्यार को, पिता के प्यार को समझते हैं तो ये कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कुछ When we पाप see राज नहीं the कर पाएगा। cross, when we see the cross, when we are sinners, the person died for us to give the freedom of this life. We never sin, brother, I tell you. आमीन। और जो हम क्रूस को देखते हैं, क्रूस के प्यार को समझते हैं, वो कभी भी पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको मतलब देख लिया। See, not work, don't think work, get the grace. Huh? और, Understand first. और क्रिया नहीं, उनका अनुग्रह को समझे। It's next step is there, I tell you. But now, first thing, stop sinning. Second thing is understand the grace, life stream water. Understand the grace. Understand the mercy. आमीन। और जो आप पहले चीज से पाप को रोकिए, पाप करना रोकिए, और उसके बाद अनुग्रह के अधीन इन बातों को थोड़ा समझिए। Full of girls in the bus, for example. Full of girls in the bus. वो एक बस पूरा लड़कियों से भरा हुआ है। 9 boys standing there, and then they are, what the people are doing in the bus, right? और आप कुछ लड़के उस पे चढ़े, और लड़के क्या करते हैं आपको मालूम है? One boy sitting in the corner seat. और एक कोने पे एक लड़का बैठा हुआ था बस में। All 8 boys doing something. This fellow is doing simply standing the face outside. और सब लड़के ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम कर रहे हैं, ये बाहर की ओर देखा हुआ है। This 8 boys asking. He was not a believer. I'm talking about a worldly man. और ये कोई भी विश्वासी की बात नहीं कर रहा किसी के बारे में, और ये एक दुनियादार लड़के की बात कर रहा है। Hey, you are not enjoying? You are turning the face outside? और तुम आनंद नहीं ले रहा है, अभी जो परिस्थिति का है तुम बाहर देख के बैठा हो। He's telling like this. He's telling like this. वो ये कह रहा है हंसते हुए, Already falling on love somebody. My heart is already given to somebody. I am not at all able to see these girls. Already my heart is there, right? और वो ये कह रहा था कि मैं ऑलरेडी प्यार में गिर चुका हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ किसी को, इन लड़कियों से मुझे देखने के मन ही नहीं। If I am seeing all these faces, all the faces are same only. I am saying that one, no. My heart is there, right? और मेरा दिल वहां पे है, मैं सभी लड़कियों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लड़की में वो उसी पर ही मेरा ध्यान जा रहा है। Again, I tell you, I am not talking about a believer. और मैं ये विश्वासी की बात कर नहीं रहा हूँ। The worldly young man, falling on love somebody, is not at all able to do any sin. That is the meaning of 6:14. और ये जो मैं दुनियादारी लोगों की बात कर रहा हूँ, ये लड़का किसी से प्यार करने लग गया, इस लड़कियों को देख भी नहीं पा रहा, इन गलत काम में नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, जो रोमियो 6:14। When we falling on love on Jesus, I tell you, the sin doesn't have any overpower in our life. Surely, brother. और आप परमेश्वर से प्यार करने लगे तो आप किसी तरह की जो इसी तरह पापों में पड़ ही नहीं सकते हैं। Understand the forgiveness of depth of our forgiveness. Then we never sin. I tell you. आमीन। वो पापों की क्षमा की गहराई को जब आप समझते हो पूरी तरह से, आप गलत काम में पड़ ही नहीं सकते हैं। We understand. Then our legs all stand on the rock. We understand this truth. I don't know, brother. और हम लोग जो दलदल की गहराई में से हमें परमेश्वर ने उठाया, चट्टान पर खड़ा किया, इन बातों को अगर समझते हो तो आप इसी तरह पापों में पड़ ही नहीं सकते हैं। செப்டிக் டேங்க்ல விழுந்த ஒருத்தனை தூக்கி நிறுத்தினா அவன் எவ்வளவு தேங்க்ஃபுல்லா இருப்பானோ அது மாதிரி நான் ஆண்டவருக்கு தேங்க்ஃபுல்லா இருப்பேன், ரைட்? और ये जो सेप्टिक टैंक बोलते हैं, जो टॉयलेट का जो टैंक होता है पीछे, उसी पे गिरा हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर उठा के साफ किया है, तो हम कितने धन्यवादी होंगे। I think I completely not able to tell this life. Why? Because this is experience, right? और ये जो मैं पूरी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे अनुभव की बातें हैं। Falling on love, understand that God is your Father. It will make us so much of difference dealing with the sin. Confirm. और हम प्यार में गिर जाना, परमेश्वर की प्यार में पड़ जाना, और ये दुनिया को देखने के तरीका बदल जाता है, और पापों में पड़ेंगे नहीं, पाप आपको राज कर नहीं पाएगा। So we may sing like this. We humble ourselves, we'll receive the grace. You know what is the meaning of humble? This is the real meaning of this humble, right?
और मतलब आप अपने आप को नम्र बनाना, उनका अनुग्रह को पाना मतलब क्या होता है? यही असली नम्रता है। That roadside boy understand who he is. That man understand who he is. That girl understand who he is. That is meaning of humble, right? और ये होता है वो जो गरीबी लड़का, वो जो चोरी करने वाली लड़की, ये लोग जो समझ रहे हैं ना, जो अपने आप को कौन है करके, परमेश्वर पिता को कौन है करके, तो यही होता है ना नम्रता। The life of Sadhu Sundar Singh, one thing was happened. Sadhu Sundar Singh. The या life of Sadhu Sundar Singh. साधु सुंदर सिंह की वो जो कहानियों में एक चीज हम देख सकते हैं। So one day that very big rich uncle and the daughter came to the home and asked to marry that girl and you follow Jesus. और एक अंकल जी आए थे कि उनके जो धनी व्यक्ति थे, उनके बेटी को साधु सिंह से शादी करवाना चाहते थे। So the Singh girls are very rich, also a very beautiful girls. और ये जो सरदार लोगों की जो बेटियां हैं और वो सुंदर हैं, बहुत धनी लोग हैं। That the uncle says, "You marry my daughter and get the all riches, and you follow Jesus." और मेरे लड़की को शादी करो, सारे धन दौलत को अपना लो और तुम यीशु को पीछे करो। Dear uncle, I am having one heart. My heart already given to my lover Jesus. I don't have a heart और to give it to a daughter. अंकल जी, और मेरे पास एक ही दिल है, वो यीशु मसीह को दे दिया, और मैं आपकी बेटी के लिए कोई जगह मेरे दिल में बचाई नहीं है। Understand the grace, under the mercies of God. Understand, sin shall not master over you. Amen. हमें उस प्यार को आप समझ रहे हैं ना, उनके अनुग्रह को समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। John brother will continue. Pardon me? Pastor John will continue. ओके, या श्योर। और प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आगे कुछ विषय को हम पढ़ेंगे, जिसे हम अभी इस 14 से हम पढ़ रहे थे कि पाप हम पर राज नहीं कर पाएगा। मैंने पिछले थोड़ी देर मैंने समझाने के लिए कोशिश किया था कि पाप हम पर राज नहीं कर पाएगा। तो सच है कि पाप राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है। कैसे अनुग्रह के अधीन है? कि हम प्रभु की जो दर्शन पाएंगे, प्रभु को देखेंगे, तो हम लोग नम्र बनेंगे तो अनुग्रह पाएंगे तो हम पाप के राज पर नहीं होंगे। तो इस विषय को अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो यीशु को देखने का तरीका जो है वो थोड़ा हम सीखा। कैसे सीखा? कि पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो एक एक हिस्से को मतलब हम समझ पाते हैं, एक एक हिस्से को हम समझ पाते हैं। ठीक है, पहले हमें चाहिए अभी, जैसे अभी ब्रदर बोल रहे थे कि हम उनके प्यार को है ना हम समझेंगे, तो हम उनके अनुग्रह के अधीन रहेंगे, सच में अनुग्रह पाएंगे, क्योंकि हम नम्र नेचुरली हो जाएंगे। है ना, मैं कौन हूँ, मैं चोर हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं जो भी था, हम उसकी गुलामी को हम याद करते हैं ना, हम जिस गुलामी में हम थे। ठीक है, इसलिए हम यीशु के बारे में थोड़ा जानने के लिए हम रिवेलेशन की जरूरत है। आज हम एक प्रकाशन की बात थोड़ी देर हम करेंगे, है ना। यीशु किस पर चर्च बनाने जा रहे थे? यीशु किस पर चर्च बनाने जा रहे थे? चर्च मतलब कौन है? आप और मैं। चर्च के शब्दों के मतलब थोड़ा जानिएगा। चर्च मतलब एकलीसिया, हिंदी शब्द जो है कलीसिया, है ना, उसी शब्दों से डायरेक्ट ऐसे निकाला गया कलीसिया। कलीसिया मतलब एकलीसिया, एकलीसिया मतलब एक सभा, एक सभा। सभा मतलब कौन सी? एक मतलब एक झुंड के लोग है। ठीक है, और बिल्डिंग नहीं है। आज हम लोग सोचते हैं कि बिल्डिंग यीशु मसीह होते हैं ना। काफी लोग मैंने देखा कि हमारे जो गांव में चर्च है, तमिलनाडु में मेरे गांव में चर्च है, लोग जो अविश्वासी भी वहां पे एक स्वामी के नाम है, एक मतलब भगवान के नाम है पदनटम करप स्वामी, एक हमारे हमारे चर्च से 100 मीटर दूर है। वो आते हैं, ये हमारे रास्ते में जाते वक्त तो हमारे सीढ़ियों को भी माथे टेक के जाते हैं। ठीक है, वो समझते हैं ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। ठीक है, इसलिए आज हम देखें ना, पास्टरों की या सेवकों की बड़ी प्यार मिलता है समाज में। क्यों मालूम है? वो यीशु ही प्रभु करके प्रचार करने से यीशु प्रभु है करके बोल देते हैं। वो ये नहीं बोल पाते हैं ओनली जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड एंड सेवियर। ठीक है, इसको सेपरेट करके नहीं दिखाते हैं, कुछ समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। सो इसलिए ये लोग जाते जाते क्या करते हैं, हमारे चर्च का ऐसे माथे टेके जाते हैं। वो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, बट ये क्या सच मतलब कौन है? एक झुंड है, एक लोग मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, वो कौन है? ठीक है,
अगर आप देखेंगे यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं, है ना। उस कलीसिया के अंदर जब हम जाते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, तो हम सच में उद्धार पाए हुए लोगों की झुंड इकट्ठा होती है। आसमान देखता है, शैतान भी देखता है, क्योंकि ये कलीसिया के शब्द जो है कहाँ से आया मालूम है? ये जो ग्रीक साम्राज्य से आया, ठीक है। वो लोग इस शब्दों को यूज करते थे, एक यीशु मसीह 2 बार या 3 बार यूज किए, है ना। इस शब्दों को अगर देखेंगे, क्योंकि ये जो मंत्री लोग इकट्ठा हुआ ना, या हम कुरिन्थियों के शब्दों के हिसाब से जाएंगे, राजदूतों की इकट्ठा होना, ये ना। राजदूत इकट्ठा होती है तो आपको मालूम है, अभी चीन हमारी और इंडिया के बीच में समस्या चला, बॉर्डर की समस्या चलता है। आपको मालूम है, कम से कम 30 से 40 बार हमारे राजदूत लोग मिलकर बात करते हैं, सीमा समस्या को ठीक कर रहे हैं। आपको मालूम है, अभी भी चला हुआ, और हर बार बातचीत हो रही है, थोड़ा ठीक हो रही है, बातचीत हो रही है। तो इसलिए हमारे पूरे सरकार ध्यान देते हैं हमारे राजदूत क्या बात करता है करके। तो इसलिए चर्च में हम जब इकट्ठा होते हैं, आसमान देखता है मेरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या हो रही है, ठीक है। और शैतान भी देखता है ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। इस कलीसिया के शब्द को आज हम समझते हैं, है ना। थोड़ा हम समझते तो हम उस अनुग्रह की बात तो समझेंगे, क्योंकि इस कलीसिया में यीशु ने अपने लहू से खरीदे हुए लोगों को रखा है, उनके शरीर के अंग है, ठीक है। चलिए, बात ही हम एक चीज हम थोड़ा सा ध्यान दें, इस कलीसिया को कहाँ बनाएंगे? कलीसिया को बनाएंगे, प्रभु यीशु ने कहा, मैं एक रेवलेशन जो मेरे पिता ने पतरस को दिया है, वो क्या है? मैं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की एक लौता पुत्र हूँ। इसी पर कलीसिया बनाया जाता है ना। इसी पर कलीसिया बनाया जाता है। कौन बनाता है? यीशु मसीह खुद। तो हम खाली एक साधन है, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द गॉड्स हैंड, नथिंग एल्स वी आर। वो परमेश्वर अपने रेवलेशन के ऊपर और अपने कलीसिया को वो खुद ही बनाते हैं। आज हम क्या करते हैं? मैंने चर्च प्लांट किया, मैंने चर्च प्लांट किया, मैंने चर्च बनाया, यहाँ पे बनाया, वहां बनाया। ये सारे थोड़ा क्या बोले, चाइल्डिश वे ऑफ टॉक, पर एक बच्चों की हरकत है, ठीक है। परमेश्वर अपने रेवलेशन के ऊपर, उनके प्रकाशन के ऊपर वो अपने कलीसिया बनाता है। जो लोग विश्वास करते हैं, मतलब मान लीजिए हम 10-15 लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही चीज पर, एक रेवलेशन पर, एक ही प्रकाशन पर हम विश्वास करते हैं, क्या है? यीशु ही प्रभु है, ठीक है। आज अब जाके देखेंगे तो कुछ मेरे पास्टर कहने से ब्रदर करना है, क्योंकि यीशु मसीह मेरा बड़ा ब्रदर है, मैं उनका छोटा ब्रदर हूँ। तो इसलिए पास्टर कहना कि कुछ लोग कंफर्टेबल लगता है, बोल दीजिए, कोई बुराई नहीं है, वो पाप तो नहीं है। बट एक चीज है, अगर मुझे आशीष करना चाहते हो, मुझे खुश करना चाहते हो, तो मुझे भाई बोलो, अच्छा लगता है, ब्रदर बोला अच्छा लगता है, ठीक है। ये इस पर मैं भरोसा रखता हूँ। बट पास्टर बोलने वालों को पाप ही तो नहीं समझता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज है, थोड़ा मैं कुछ लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, बातचीत करता हूँ, मैं हिमाचल में जब भी जाता हूँ, लोगों से बातचीत करते वक्त एक चीज मैं उनसे पूछता, कैसे आप प्रभु में आया? मैंने काफी लोगों के शब्द सुनकर हैरान हो गया। इवन दे डोंट नो क्राइस्ट एट ऑल, दे आर बिकम पास्टर्स, लीडर ऑफ द चर्च, एल्डर ऑफ द चर्च, आई डू नॉट नो हाउ दे बिकम पास्टर्स। और एक बुराई करने से पहले किसी को आज यीशु को प्रभु करके काफी लोगों को मालूम है, किसी को मालूम है, इफ यू नो क्राइस्ट इज द लॉर्ड, इसकी जीवन जो है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, प्रभु को प्रभु करके जानते हैं, तो मैं नहीं कहता कि पापों पर कुछ हमारा दिल जाएगा या दिलचस्प बनेगा हमारे अंदर। आज लोग इसको नहीं जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि कलीसिया उस पर बनाया जाता है, रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशन के ऊपर। वो प्रकाशन क्या है? यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, ठीक। यीशु ही प्रभु है, तो पैसा कैसे मेरे प्रभु बन गया? धन दौलत कैसे मुझे प्रभु? आज काफी लोगों को डर है, डर है। एक ये छोटी सी उदाहरण देता हूँ। वो धनी व्यक्ति था ना, जो यीशु के पास आया, उसको बोला तो सारे बेच के, छोड़ के, मतलब सारे बेच कर गरीबों को बांट के मेरे पीछे आओ। जकीर से इन्होंने, यीशु ने ऐसा नहीं कहा। वो यीशु को देख लिया, ये जवान लड़का पुराने नियमों की, पुराने कानून व्यवस्था के अधीन था। he was under the old covenant, so Jesus has to tell him sell everything and distribute to poor and come and follow me. जक्कई को ये कहना नहीं पड़ा, सगेव के इसे 16 मिनट आवश्यक मिला, कहने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि वो खुद यीशु को देख लिया। Do we know Jesus Christ? If you know, we are church. We are the church one, only one church.
where rest of the people I know they are Christian, they are following the religion won't to affect in any way. इसलिए इंडिया में इतनी बड़ा संकट है। ठीक है, मुझे थोड़ा हम एक दो मिनट में एक चीज बोलता हूँ। हम कलीसिया इकट्ठा होते हैं तो एक प्रकाशन पर हम बने हुए हैं, वो है यीशु ही प्रभु है। तो ये जो कलीसिया इकट्ठा होता था, आसमान और धरती देखता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं देखता। ठीक है, ये दीवार आप पीछे देख रहे हैं, ये शराब की दुकान है। ठीक है, हम यहीं पे आराधना करते हैं, ये शराब की दुकान है, हम यहीं पे आराधना करते हैं क्योंकि यही हमें सस्ता में मिला। ये करीब 50,000 किराए में जाने वाला दुकान हमें मिली है 5,000 में। तो हम लोग यहाँ 10-15 लोग इकट्ठा होते हैं। आप मानो ना मानो प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेते हैं, आप उनके साथ बैठे हैं और लोग आज प्रभु में विश्वास में बढ़ रहे हैं। एक मालूम है, क्यों मालूम है? वो प्रकाशन, अनुग्रह उनको मिलेगा जो उनको प्रकाशन पाए हुए लोग हैं। आज लोग अनाथ है, इसलिए पैसा के ऊपर अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है ना, एक मैं जोक में सुनाता हूँ कई बार, लोग अपने आप को कीड़ा और ना हम मिट्टी है प्रभु, हम कुछ नहीं है प्रभु, ये है वो है, आराधना में बोल देते हैं। बाहर जाके वो मिट्टी है, तुम तो कीड़ा है, तुम नालायक, ऐसे बोल दिए, वो एकदम लड़ पड़ेगा आपसे, क्योंकि अपने शब्दों पर खुद विश्वास नहीं करते। अगर यीशु प्रभु है करके विश्वास करते तो बाहर जाके कोई गाली दिया तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। ठीक है, और आज उस रेवलेशन की प्रॉब्लम है। आज मैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वचन को आप लेके आकर रोड दिस बाइबल उनके साथ बैठकर पढ़िएगा, तभी प्रकाशन मिलेगा। द रेवलेशन यू विल गेट, यू विल कम टू अंडरस्टैंड द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज नथिंग गोइंग टू हैपन एनीथिंग। और हम परमेश्वर को, और हम एक अगला स्थान में हम बैठे हैं, बाकी सारे पापी है। मैं एक अच्छे वचन को पढ़कर प्रार्थना करना चाहूंगा। लूका 18 का 14, लूक चैप्टर 18 वर्स नंबर 9। और एक बड़ी एक ऊंचा शब्द से यीशु ने हमें समझाने के लिए कोशिश की। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, व्हाट वाज द वर्ड, वो लोग खुद पर विश्वास करते थे हम धर्मी हैं, ये ना, क्योंकि वी नो द बाइबल। ठीक है, नोइंग बाइबल मतलब आपको बाइबल को जानना अलग है, उनकी रेवलेशन बिल्कुल अलग है। ये लोग बाइबल को जानते थे, फरीसी लोगों की बात कर रहे थे। फरीसी जीसस टॉक्स अबाउट फरीसीज, मतलब वो लोग बाइबल को जानते हैं, इसलिए परमेश्वर को जानते हैं करके भरोसा करते थे, बट वही लोग यीशु मसीह को मार डाला। आज हम भी कितने बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं जब रेवलेशन नहीं है, पाप के द्वारा, क्योंकि पाप हम पर राज करता है, हम पाप के अधीन हैं। इसी वजह से हम आज रेवलेशन उसकी जरूरत है, परमेश्वर यीशु मसीह ही प्रभु है करके। अदरवाइज वी कैन नॉट नो द ट्रूथ दैट इज वी आर अंडर द ग्रेस। गॉड मे ब्लेस यू। क्या होगा तो something, yeah, the revelation about God as a father and revelation about Jesus the Lord is the power to sin to be not touched in our life, confirm. आमीन। ये जो प्रकाशन है, यीशु ही प्रभु पिता हमारे पिता है करके, तो यही पाप के ऊपर विजय पाने का मतलब, पाप हमको हमारे ऊपर राज नहीं कर पाएगा। No animal, even the human, not able to teach, find out the father, right? They understand, right? और Revelation. ये जो लोग, दुनियादारी लोग है, इवन जानवर भी नहीं जानता कि पिता कौन है करके। Exactly. That Jesus want to build his church, the revelation stone. What is the revelation stone? Jesus is the Lord, right? The revelation stone, Matthew chapter 16:16. यीशु यही बोलना चाहते थे, यही प्रकट करना चाहते थे, यीशु ही प्रभु है, उसी पर कलीसिया बनाए जाएं। Jesus asked the Peter, what the people are telling? People are telling so many things. What do you tell? और पत्रस से यीशु पूछ रहे थे, लोग दुनिया में मेरे बारे में क्या कहते हैं, बताओ। He says, you are the Son of God who living. और पत्रस अपनी ओर से बोला कि आप ये एक जीवित परमेश्वर की संतान है। Jesus immediately said, the flesh and blood not revealed this. My heavenly Father has revealed this thing to you. और ये मांस लहू की प्रकाशन नहीं, ये मेरे पिता खुद आपको ये रेवलेशन दिया है, प्रकाशन दिया है। Place only 16:18 says, on this revelation stone I will build my church. और ये जो प्रकाशन है, किस प्रकाशन की चट्टान है, इसी पर ही मेरे कलीसिया बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। The same word is there. The heads of Kel cannot
while over. Please understand 6:14 also, same things written there. और वो ये भी लिखा है, ये जो नरक के फाटक है, इसके ऊपर विजय नहीं पाएगा। Why? Because the revelation lead overcoming sin. Confirm. ये जो प्रकाशन, ये हमें पापों के ऊपर हमें लेके आता है। We have a revelation about God is our Father. The sin doesn't have a overpower in our life. Confirm. और ये एक पक्की बात है कि प्रभु को प्रभु करके जानना, परमेश्वर को पिता करके जानना हमें पापों पर विजय दिलाता है। The revelation about Jesus no change our life. The sin no will not able to stand. Confirm. और ये जो यीशु मसीह की प्रकाशन, जो प्रभु करके पिता करके हम जो प्रकाशन ये पा लिया, जो पाप हम पर किसी तरह के राज नहीं कर पाएगा। Not a preaching, not a message, not a reading. Revelation, right? और हमें समाचार नहीं, प्रचार नहीं है, एक मैसेज नहीं है, हमें चाहिए रेवलेशन, प्रकाशन चाहिए। Not you may have a knowledge about all the things. No. Revelation. The और revelation हमें about God is our Father. ये ज्ञान की भरमार नहीं है कि हम उनकी प्रकाशन पाएं यीशु की प्रभु The करके। revelation about Jesus will give us so much of power to the Paul, Peter, and all the disciples. They have a olden days. They have so much of power. Why we lost the power? We don't have a revelation. That's all. और ये पतरस और पौलुस को ये प्रकाशन मिला कि यीशु ही प्रभु करके, इसलिए वो लोग जो पापों पर विजय पाए। So I don't know. This is a right way to be. Jesus also praising like this in Luke chapter 10. Yes, Father, this is a way. You are giving the revelation to the babes. They are having the powerful life, overcoming Satan, overcoming devil departers, right? Luke chapter 10:25. और ये लूका 10 की 35 में इसी तरह लिखा है कि प्रभु आप ज्ञानियों को छुपाकर इन भोले बच्चों को अपनी इस प्रकाशन को दिया है। This is true. We must have a revelation about our Heavenly Father, about Jesus. The sin cannot have overpower, master over us. और दूसरी बात यह है कि हम पिता परमेश्वर करके जाने, ये प्रकाशन जो है आपको पापों पर विजय दिलाएगा, मतलब पाप आप पर राज नहीं कर पाएगा। You can lead the prayer, no? Closing prayer. Right? पिताजी तेरा धन्यवाद मेरे स्वामी, सुंदर अवसर के लिए, आपके प्रिय दासों के सभी के लिए धन्यवाद करते हैं जो लोग सुन रहे हैं। राजा आज वो प्रकाशन वो पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इसके बिना जी मसीह धर्म जो है बर्बादी की ओर में ले जा रहा है। प्रभु जी हमें इस सच्चे विश्वास पर जो प्रकाशन जो आप दे रहे हैं उसको पाए मेरे पिता, हमें धर्म को नहीं आपकी सच्चाई पर विश्वास करने का प्रभु जी एक प्रकाशन दीजिए मेरे पिता। हर एक जन को आशीष करिए, सब आपको जाने की आप ही पिता हैं, परमेश्वर हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, बोले आमीन आमीन। पिता